don't blame God for anything. किसी भी परिस्थिति के लिए परमेश्वर को दोष मत लगाइए। Don't wish that you had another husband or another wife. ये कल्पना भी नहीं कीजिए, सोचिए मत कि आपको अलग दूसरी पत्नी होती है, दूसरा पति होता। God has arranged. See, marriage is not a thing where everything will go smoothly. शादी ऐसी जोड़ नहीं है, ऐसा व्यवहार चीज़ नहीं है कि बहुत चीज़ें आराम से सुख से चलेंगी। Our whole life is not like that. हमारा पूरा जीवन भी ऐसा नहीं है। God allows our life to be like that stormy sea, the lake of Galilee, where the boat was tossed around. परमेश्वर हमारे वैवाहिक जीवन को, हमारे पूरे जीवन को ऐसा होने देता है जैसा गलील में वह नाव समुद्र की लहरों में उबड़ खाबड़ हो रही थी। But the wonderful thing was Jesus was in the boat. लेकिन बहुत ही आनंद की बात थी कि यीशु मसीह उस नाव में था। We think that if Jesus is in the boat, there won't be any storm. और वो सोचते रहेंगे, हम सोचते रहेंगे यीशु मसीह हमारे नाव में है, कोई तूफान नहीं आएगा। There will be storm. हाँ, वहाँ तूफान होंगे। There'll be storm in our life. There'll be storm in our married life. There'll be storm in the church. कलीसिया में, हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे परिवार में तूफान आंधी होंगे। But Jesus can still those storms. That's the gospel message. लेकिन शुभ समाचार का मैसेज यही है कि यीशु मसीह उसे रोक सकता है, थाम सकता है। So, what sort of life would you like? A smooth life without any difficulties, any problems, any trials? तो किस तरह का जीवन आपको चाहिए, बिना किसी मुसीबत, संकट, तकलीफ के? That will be quite a boring life. वो बहुत ही उबाऊ जीवन होगा। Supposing the gospel stories were like this, हम अंदाज लगाएंगे कि परमेश्वर के वचन की कहानियाँ ऐसी रहेंगी। and Jesus went for a marriage in Cana, यीशु मसीह काना देश में एक शादी में गए, and there was plenty of food and wine. There was no problem. They had a good time and came back home. वहाँ बहुत ही अच्छा दाखरस था, बहुत ही संख्या क्वांटिटी में था और अच्छा खाना था। And they got into a boat and went across a lake. It was very smooth, so they had a good journey up to the other side. और एक नाव में बैठकर वे सफर कर रहे और वहाँ कोई आंधी तूफान नहीं, बहुत ही आराम से वे किनारे पर पहुँच गए। And once there was 5,000 people he was speaking to. और एक समय वो 5,000 लोगों को उपदेश दे रहा था उस समय। But fortunately they had all brought their lunch packets with them, so they could all sit down and eat. लेकिन योगायोग वो सब लोगों ने अपने अपने खाने के टिफिन अपने साथ लाए थे और खाने बैठ गए वो लोग। Even the Sunday school children will say, please don't tell us these boring stories. Who's interested? रविवार के स्कूल के छोटे बच्चे भी अपने माँ पिता से हमसे ये कहेंगे, ये उबाऊ कहानियाँ हमें मत सुनाइए। What will be your testimony when you go to heaven? आपकी साक्षी क्या रहेगी जब आप स्वर्ग जाएंगे? We'll hear about Daniel who tells us how he was thrown to the lions and the lions shut their mouths. ये ऐसा होगा कि किस तरह से दानियल शेर के पिंजरे में डाल दिया गया और कैसा वहाँ से उसका बचा हुआ। And how David killed Goliath, he'll tell us his testimony. और वहाँ गोलियत के दाऊद ने कैसा मारा, उसकी टेस्टिमनी हमें बताई जाएगी। And they'll say, brother, sister, you tell us your testimony now. और वहाँ वे हमसे पूछेंगे, भाई और बहनों आपके जीवन का साक्ष्य बताइए। I prayed that I'll have no problems in my life. हम वहाँ उनसे हाथ जोड़कर कहेंगे कि हमारे जीवन में कोई भी तनाव, तकलीफ, कष्ट नहीं था। I never had any problem. मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम, समस्या नहीं थी। And when I did have one problem, I complained so much that God never gave me any more problems in my life. एक था कि मैं परमेश्वर से शिकायत करता था, मुझे कोई भी समस्या, दुख, पीड़ा नहीं दीजिए। I don't want a testimony like that. मैं ऐसा साक्षी नहीं चाहता हूँ। I want a testimony where I can tell hundreds of stories of all types of things that happened in my life, and by the grace of God, I overcame all of them. मैं ऐसा साक्ष्य चाहता हूँ कि मैं बहुत सी हजारों, 100 कहानियाँ ऐसा रहे मेरे जीवन में, परिस्थितियाँ जिनमें मैं विजयी हुआ और परमेश्वर की महिमा किया। Think if you had a very difficult mother-in-law. सोचिए अगर आपको बहुत ही तकलीफ और कष्ट देने वाली एक सास है। You tell people in heaven, boy, you should have seen the mother-in-law I got. और आप स्वर्ग में ये साक्षी देने पाओ कि आप कदाचित मेरी सासू से बर्ताव में आते। Conquered her by love. लेकिन मैंने उसे प्रेम से जीत लिया। I decided that Jesus is more powerful than the devil. मैंने ये देखा कि यीशु मसीह शैतान से बहुत ही शक्तिशाली है। What a testimony that will be. ये साक्ष्य कैसी होगी? I'm not saying we should be foolish. मैं ये नहीं कहता मूर्ख होना चाहिए। But each situation may be different. पर हर परिस्थिति अलग हो सकती है। We need a lot of wisdom. हमें बहुत ही बुद्धि चाहिए। But what I want to say is this. मैं ये कहना चाहता हूँ, to me every situation is a test. Who is stronger, Christ or the devil? मेरे लिए हर एक परिस्थिति ये निर्णायक होती है कि कौन ताकतवर है, यीशु मसीह या शैतान। When people do something wrong to you, अगर कोई लोग आपसे साथ गलत बर्ताव करते हैं, supposing they accuse you falsely, अगर वो गलत झूठ मूठ आपको दोष लगाते हैं, who are they serving? किसकी वो सेवा कर रहे हैं? Christ or the devil?
यीशु मसीह की या शैतान की? Definitely, they are serving the devil if they accuse you falsely. अगर आपको वो झूठ मूठ दोष लगा रहे हैं तो वो शैतान की सेवा कर रहे हैं। See, as I've been serving the Lord now more than 40 years, अगर मुझे 40 साल हुए मैं यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूँ and I know the devil hates me like anything, और मैं ये जानता हूँ कि शैतान मुझे बहुत ही नफरत करता है, but I'm not afraid of him. पर मैं उससे डरता नहीं हूँ। But because he hates me so much, he gets all types of people to accuse me of all types of wrong things, और जब वो false things. जब मुझसे जलता है, शत्रुता रखता है, तो मेरे जीवन में सब झूठे लोग और ऐसे परिस्थितियां वो बनाता है। But what's the use getting angry with them? पर क्या वो उनसे क्रोधित है? I don't get angry with them. क्या मैं उनसे कभी क्रोधित नहीं होता? I say, this is the devil. मैं यह कहता हूँ कि वो शैतान का कार्य है। I want to now prove that Christ is greater than the devil. अब यह मुझे सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है कि यीशु मसीह शैतान से ज्यादा शक्तिशाली है। But most of the believers, पर बहुत से विश्वासी they don't prove that. ये सिद्ध नहीं करने पाते। That fellow serves the devil. ये भाई शैतान की सेवा कर रहा है, They also serve the devil and hit back. वे भी उसके रिटर्न में अपोज में उस शैतान का सेवा करते हैं। It's absolutely foolish. बिल्कुल मूर्खता है। See this lovely verse. यहाँ हम एक उत्तम प्यारा वचन देखेंगे, Romans chapter 12, रोमियो इसका 12वां अध्याय verse 21. 21वां वचन। He's talking about your enemies. If your enemy is hungry, feed him. If he's thirsty, give him something to drink. बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। Yeah, verse 20. If your enemy is hungry, feed him. 20वां वचन, यदि तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे So, खाना खिला। overcome evil with good. बुराई को भलाई से जीत लेना। Which is stronger, किससे ज्यादा, किसमें ताकत है, evil or good? अच्छाई या बुराई? Satan says evil is stronger. शैतान कहता है बुराई ताकतवर है, We say no. यीशु कहता है नहीं। Christ is हम कहते हैं stronger. नहीं, यीशु मसीह ताकतवर है, Good is stronger. अच्छाई ताकतवर है। The devil says, prove it. और शैतान कहता है ये सिद्ध करके Okay. दिखाओ, I'm going to prove it. और मैं इसे सिद्ध करके See, दिखाऊंगा। we must be in the place where nothing can take us out of love. Nothing can remove love from our hearts. इन दिनों में हम देखेंगे कि कोई भी चीज हमारे हृदय से प्यार को नहीं निकालने पाएगी। This is the real proof of being filled with the Holy Spirit. ये सच्चा प्रूफ है पवित्र आत्मा से भरा रहने का। That nobody can bring me out of love. कोई भी मुझे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। Love must be my permanent address. प्यार मेरी हमेशा की एक एड्रेस होनी चाहिए, That I'm always there. कि मैं हमेशा वहाँ हूँ। I'm never going to shift from there. मैं इस प्यार से कभी भी मेरा पता अलग नहीं करने वाला हूँ। If I make a mistake, अगर मैं गलती करता हूँ, I say, Lord, I'm sorry. मैं परमेश्वर से कहता हूँ If मुझे I've क्षमा कर। hurt somebody, I say, I'm sorry. मैं किसको सुनता हूँ, मैं किसको दुखाया है, मैं परमेश्वर से क्षमा मांगता हूँ। See, that's the other thing we must learn as husband and wife to ask forgiveness from each other. ये दूसरी बात है, हम सीखते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे से क्षमा मांगे। We must see that sin, even a small one word that we speak which is hurtful, is like a thorn coming into our foot. ये पाप, एक छोटा सा शब्द जो पाप का है, वो ऐसा रहता है कि हमारे पैर में जैसा एक कांटा चुभाया जाए। Now, if a thorn gets into your foot, how long will you wait till you take it out? अगर एक कांटा आपके पैर में चुभ जाए तो आप कितनी देर इंतजार करेंगे उससे निकालने के लिए? You won't even wait 5 seconds. 5 सेकंड भी आप उसका इंतजार नहीं करेंगे। Whatever work you're doing, you'll stop जो भी आप काम करते रहेंगे वही रोक देंगे, and say, I've got to take that out first, otherwise it'll destroy my foot more. और आप ये कहेंगे कि इसे मैं अभी निकाल दूंगा, नहीं तो ये मेरे पैर को नाश कर देगा। When you hurt somebody, लेकिन आप ये किसको अगर आप दुखी करते हैं, खेदित करते हैं, you have hurt him with your words, आपके शब्दों से किसको आप घायल करते हैं, but you have hurt your own conscience much more. आपने अपने हृदय को, अपने विवेक को ज्यादा ठेस पहुंचाई है। See, when people call Jesus Beelzebul, prince of devils, जब यीशु को लोगों ने शैतान और शैतान का राजा कहा, सेना का, did it hurt Jesus? क्या ये बात से यीशु मसीह को दुख हुआ, खेद हुआ? You couldn't hurt him. ये उसे खेद नहीं कर सका। You cannot hurt Jesus. ये यीशु मसीह को खेदित नहीं कर They सकता। hurt themselves. उन्होंने खुद को खुद दुखी किया। If people call me the devil, they're not going to hurt me. अगर लोग मुझे शैतान कहते हैं, मुझे नहीं दुख पहुंचाते, They hurt themselves. वो खुद को दुख पहुंचाते हैं। Anybody who tries to hurt me is actually hurting himself. अगर कोई मुझे दुख देना चाहता है, वो खुद को दुख देता है। So when you say something which hurts somebody, actually you've hurt yourself. अगर आप कहते हैं और किसको दुख होता है तो
वास्तव में आपने Now, खुद को दुखी कर दिया a है। thorn has got into your foot, a bad conscience. A bad conscience is like a thorn in your foot. हाँ, बुरा विवेक एक ऐसा है कांटे के जैसा अपने पैर में। How long are you going to wait till you take it out? अगर आप उसे निकाल नहीं देते कितना देर आप इंतजार करेंगे? You must go immediately आप तुरंत उसे निकाल देंगे। and ask the Lord to forgive you परमेश्वर से प्रार्थना करो आपको क्षमा करे। and go to your husband or wife and say, I'm sorry, please forgive me. अपने पति और पत्नी के पास जाओ और कहो मुझे क्षमा कर। That in my anger I said that. मेरे क्रोध में मैंने यह कह दिया, I'm sorry, it was my mistake. मेरी ये गलती है, मैं क्षमा चाहता हूँ। Then you don't allow the devil to come into your home. और आप अनुमति नहीं देते और मौका नहीं देते शैतान को अपने घर में आने And at का। the same time, your conscience will not be destroyed. और आपका विवेक भी नाश नहीं होगा And your relationship in the home is restored. और आपका संबंध पति पत्नी का घर में वापस जुड़ जाता है। But if you leave that thorn there, अगर आप वो कांटा वहीं पर छोड़ देते हैं it'll get infected and it'll become pus around it and kill your conscience. और आपके विवेक को वो घायल करता रहेगा, वहाँ बीमारी उत्पन्न करेगा और नाश करेगा। So as soon as you're aware, you must ask for forgiveness. और जैसे आपको पता चलता है आप क्षमा तुरंत मांगना चाहिए। The second thing is that we must forgive also quickly. और दूसरी बात हमें तुरंत क्षमा भी करना चाहिए। You know, sometimes if your husband or wife comes and asks for your forgiveness, कभी हम देखते हैं कि पति पत्नी हम क्षमा मांगने को जाते हैं sometimes we can act very proud and big. और हम बहुत ही घमंड में और महान बन के एक्ट करते हैं, वर्ताव करते हैं। We act as though, well, I'm not going to forgive you so quickly. और हम ऐसा वर्ताव करते हैं और दर्शाते हैं कि हम जल्दी से क्षमा नहीं करेंगे, Because you have behaved so badly for the 1000th time. क्योंकि ऐसा बुरा वर्ताव आपने कितना अनेक हजारों बार किया है। Who are you ruining? You're ruining yourself आप खुद को नाश कर रहे हैं। when you don't forgive someone. अगर आप किसको क्षमा नहीं दे रहे तो खुद को नाश कर रहे हैं। I use my imagination sometimes to think how God is doing things in heaven. मैं कभी कभी अपने मन से बुद्धि सोचता हूँ कि परमेश्वर स्वर्ग में कैसे कार्य कर रहा है। You know, this earth is full of so many people who do wrong things. ये धरती बहुत ही ऐसे लोगों से जो बहुत बुराई कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, भरी हुई है। And there are many people asking God from the earth, Lord, please forgive me. और कितने लोग हैं यहाँ धरती से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। So many. If you think of in one day, how many people are, the millions of people are saying, Lord, please forgive me, forgive me, forgive me. हम कल्पना करेंगे कितने लाखों लोग दिन में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। Even unbelievers. अविश्वासी भी, Oh God, forgive me. ओ परमेश्वर मुझे क्षमा कर। What is God doing in heaven? परमेश्वर स्वर्ग में बैठा क्या कर रहा है? He's immediately forgiving. वो तुरंत क्षमा कर देता He है। doesn't wait for somebody and say, okay, I'll tell you tomorrow whether I've forgiven you or not. वो इंतजार नहीं कहता, ये नहीं कहता मैं आपको क्षमा किया है नहीं, कल बताऊंगा। Immediately forgiven. तुरंत क्षमा कर देता है। And then somebody else from there is asking for forgiveness, forgiven. वहाँ से कोई क्षमा मांग रहा है, And जल्दी from क्षमा कर the दिया। other side of the earth, somebody is asking forgiveness, forgiven. धरती के इस कोने से इस जगह से कोई So- क्षमा मांग रहा है, तुरंत क्षमा कर दिया। I use my imagination to think what is God is doing all the time. ये मैं कल्पना में सोचता हूँ परमेश्वर वहाँ बैठकर क्या कर रहा है। You know what he's doing? आप देखते हैं क्या कर रहा है परमेश्वर? He's saying, forgiven, 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 forgiven. That's what he's doing all the time. हर समय वो क्षमा किया, क्षमा किया, क्षमा किया, ये कह रहा है All the time. हर समय। What about tomorrow? तुम्हारा कल के लिए क्या? Forgiven, forgiven, forgiven. This he's doing all the time. पूरे समय वो ये कह रहा है क्षमा किया, क्षमा किया, क्षमा किया। Many of us say, Lord, I want to be like you. हम बहुत कहते हैं और कहते हैं परमेश्वर हमें आपके जैसा बनना है। Why not be like him in this area? इस क्षेत्र में हम उसके जैसा क्यों नहीं बन रहे? As soon as somebody asks forgiveness, forgiven, sure. कोई आपसे क्षमा मांगता है, तुरंत आप क्षमा कर दो। Okay, 1 minute later they do the same thing again. 1 minute later, 1 मिनट बाद में वही गलती वो दोहराता है, forgiven. क्षमा कर दीजिए। After 1 minute, again the same thing, 1 मिनट के बाद वैसी गलती क्षमा कर दिया। forgiven.